Hi, biological classification, lecture number 5. Right? So we briefed about what do you mean by classification, artificial system of classification, oldest, modified to natural, then the phylogenetic system, and the widely accepted five kingdom classification. रट्टा याद है? चलो, first two kingdom classification given by Linnaeus. It was even followed by Aristotle as well as Theophrastus. Criteria अलग-अलग थे. Three kingdom classification by Haeckel. Three kingdom by Haeckel. Which was the third kingdom? It was Protista. All unicellulars were kept in the Protist. The word Protista coined by Haeckel. Three kingdom classification was given by Haeckel. And the third kingdom added in the two kingdom system of classification was again Protista. Right? Okay. Then fourth kingdom added by Copeland, four kingdom classification by Copeland. He gave the fourth kingdom, added the fourth kingdom, that is Monera. Monera include all prokaryotes. अगर आपको याद है तो मैंने डे 1 से आपको ये बात सिखाई. ये तीन शब्द पैरेलली बोलेंगे आप. कौन से? Monera, prokaryote, bacteria. Monera, prokaryote, bacteria. These are the parallel words. Right? ये ऐसे ही बोलेंगे. किंगडम का नाम मोनेरा है जिसमें बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स एडेड है. Monera, prokaryotes, bacteria. Right? So this is five kingdom classification based on five criteria. This is the diagram. Okay? चलो ये डायग्राम के आधार पे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. रेडी? पक्का? चलो. Which kingdom includes the most ancestral life forms? Monera. Right? Then the kingdom allotted to unicellular eukaryotes. The kingdom allotted to unicellular eukaryotes. Yes, Protista. Name the kingdom which are unicellular kingdoms. Monera, Protista. देखो unicellular लिखा है. बोर्ड पे आंसर है, थोड़ा अच्छे से देखो. Unicellular kingdoms are Monera and Protista. Name the kingdoms which have ancestry in Protista. Protista में ancestral relation बताने वाले कौन से kingdom है? ये तीनों, fungi, animals, plants. All the three are having ancestry in Protista. Right? Name the kingdom which includes absorptive heterotrophs. Absorptive heterotrophs, right? Fungus. लिख लो यहाँ पे, ऐड कर लो पॉइंट. ये डायग्राम ड्रॉ किया है ना आपने, अच्छे से प्रोमिनेंटली ड्रॉ करो. फंगस लिखो, यहाँ पे लिखेंगे हम absorptive heterotrophs. Write down here. Absorptive heterotrophs. Name the kingdom which includes ingestive heterotrophs. Ingestive heterotrophs. Yes, very correct. Animals. Write down there. लिख लो ऊपर. Ingestive heterotrophs. Okay, right? Then name the kingdom which include multicellular photoautotrophs only. अब only शब्द पे फोकस करेंगे आप. अगर मैं only निकाल दूं तो बदलेगा आंसर. ठीक से सोचो, ठीक से. Listen. What I said? Name the kingdom which include multicellular photoautotrophs. मतलब यूनिसेल्युलर किंगडम निकल गए. मतलब ये दो किंगडम के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो क्योंकि मैंने मल्टीसेल्युलर पूछा है. So the answer will be plants. Multicellular photoautotrophs belong to kingdom Plantae. Got it? Right? चलो अब थोड़ा वाइज क्वेश्चन. बाय द वे, हाँ, आई रिपीट, आपने लिख लिया. फंगस इधर लिखेंगे आप. एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स. एनिमल्स के लिए लिखेंगे आप इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स. प्लांट्स के लिए लिखेंगे आप एब्जॉर्प्टिव फोटोऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स के लिए लिखेंगे एब्जॉर्प्टिव फोटोऑटोट्रॉप्स.
right? Done. Now listen the question. What is that? Name the kingdom or kingdoms which include photoautotrophs. कौन से किंगडम के पास फोटोऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलता है? ऑब्वियसली प्लांट्स तो है ही, लेकिन देखो प्लांट्स जो यहाँ पे ओरिजिनेट हुए, प्लांट जैसे प्रोटिस्ट दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स, बराबर, राइट? ओके, देन सो प्लांट तो फोटोऑटोट्रॉप है, प्लांट जैसे प्रोटिस्ट भी फोटोऑटोट्रॉप है, और बैक्टीरिया भी फोटोऑटोट्रॉप्स है ना. So there are three kingdoms which show photoautotropic mode of nutrition, that is few Monera, few Protista and all plants. ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, स्टार पॉइंट लिख लो. In five kingdom classification, photoautotrophs are found in Plantae, or write down entire Plantae, found in entire Plantae, few Protist and few Monera, not all. सबके सब मोनेरा फोटोऑटोट्रॉप्स नहीं है, सबके सब प्रोटिस्ट भी फोटोऑटोट्रॉप्स नहीं है, लेकिन सबके सब प्लांट्स फोटोऑटोट्रॉप्स है. सबके सब प्लांट्स फोटोऑटोट्रॉप्स है. समझ रहे हो, राइट? चलो एक्सेप्शन दे दो मुझे. नेम अ प्लांट विच इज नॉट फोटोसिंथेटिक. जानते हो? यस, एनीवन? येलो कलर का होता है, वायर जैसा, प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, इलेक्ट्रिक वायर जैसे, येलो कलर. कस्कुटा, अमरवेल, एब्जॉर्प्टिव हॉस्टोरिया रूट्स मॉर्फोलॉजी में सीखे होंगे आपने, राइट? ओके, सो दैट इज एक्सेप्शन. जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूं, ऑल प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मल्टीसेल्युलर एब्जॉर्प्टिव ऑर्गेनिज्म्स, राइट? ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया ये बिल्कुल सही है, बस कस्कुटा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन की वजह से ये स्टेटमेंट को हम गलत नहीं बोलेंगे. ऑल द प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर एब्जॉर्प्टिव फोटोऑटोट्रॉप्स. क्लियर, राइट? ओके, देन नेम द किंगडम विच आर हैविंग कीमोऑटोट्रॉप्स. लास्ट लेक्चर में एक लाइन बोली थी मैंने, कीमोऑटोट्रॉप्स कहां पे मिलेंगे? Monera. Chemoautotrophs are found only in Monera. Okay, so add this point here. Chemoautotrophs only in Monera. Right? और एक अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिखाया था मैंने. ऑटोट्रॉप्स लिखे थे. ऑटोट्रॉप्स के दो प्रकार, या टेल मी टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स. फोटोऑटोट्रॉप, कीमोऑटोट्रॉप. जिनको आंसर नहीं आ रहे हैं ना, पॉज द वीडियो, गो बैक, कल का लेक्चर सुनो, कल के नोट्स पढ़ो, एंड देन पार्टिसिपेट इन क्वेश्चन आंसर. देखिए, शांति से बैठ के सुन रहे हो नहीं चलेगा बेटा. ओके, सिंपल से क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियसली आने चाहिए, रिफ्लेक्स जैसे आने चाहिए, तो ही कल का लेक्चर आपको समझा है. अगर कल का नहीं समझा है तो आगे के नहीं समझेंगे. सो जज योरसेल्फ, right? So what you wrote here? Prokaryotic unicellular allotted to Monera. Monera also called prokaryotes and bacteria, right? And chemoautotrophs are found only in, right? Chemoautotrophs लिखो या chemosynthetic लिखो, belongs to only Monera. अब फोटोऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है. ऐसा कौन है? मिक्सोट्रॉप. फोटोऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है. ऐसा कौन है? मिक्सोट्रॉप. मिक्सोट्रॉप्स आर फाउंड इन प्रोटिस्ट. ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम मिक्सोट्रॉप्स आर फाउंड इन प्रोटिस्ट. ओनली इन मिक्सोट्रॉप्स आर फाउंड ओनली इन प्रोटिस्ट. चलो, आ गया क्वेश्चन आंसर, समझ रहे हो?
राइट, बाय डिफॉल्ट खटाखट आंसर देते आने चाहिए, राइट, प्लीज क्रॉस चेक, या फिर मैं सच में यहाँ पे रुक रही हूँ, 2 मिनट का पॉज ले लो, लास्ट नोट्स पढ़ लो, ओके, ब्रीफली रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी का और मैंने दिया वाला चार्ट देख लो, एंड देन सिट फॉर द लेक्चर। ये चैप्टर बेटा अकेले में नहीं करोगे, बोर होता है, मेरे साथ करो, हो जाएगा, ओके, और लाइव सेशन के 1 लाइन टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करो। सो रिवाइज्ड, डन, कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा मतलब हम बार बार बोलेंगे मोनेरा मोनेरा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, मोनेरा मोनेरा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, एंड दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर विथ फ्यू एक्सेप्शंस। अब आप बोलेंगे मैम अरे ये डिटेल्स में जा रहे हैं ना, तो थोड़े एक्सेप्शन भी बता कर लें, राइट, दे आर यूनिसेल्युलर बट फ्यू आर filamentous form, few celled structure, no tissue organization, right, nothing doing, very simple type of cells, just एक filament जैसे हो सकते हैं, but major are unicellular. Okay, so see, I wrote the properties on the board. Kingdom Monera, prokaryotes, unicellular, right, यहाँ पे ये जो मैंने शब्द भी ऐड किया था, these are also bacteria, right, okay, then it includes, इसको और आगे जाके अगर हम क्लासिफाई करते हैं, then they are including archaebacteria, eubacteria, eubacteria में photoautotrophs, chemoautotrophs आएंगे, right, वैसे archaebacteria में भी आएंगे, archaebacteria में भी आएंगे, mode of nutrition again varies, some are heterotrophs, some are autotrophs, some are chemoautotrophs, because total मोनेरा में ही वैसा है, बराबर, so eubacteria, autotrophs, chemoautotrophs, photoautotrophs, some are heterotrophs, so this classification is even true for archaebacteria, right, okay, then one additional group is mycoplasma, they are something different, वो बैक्टीरिया ही है लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं है, राइट, सेल वॉल बैक्टीरिया के पास होती ही है, ये उसके लिए एक्सेप्शनल है, और ये जो है एक्टिनोमाइसिड्स, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, दीज आर फंगस लाइक बैक्टीरिया, दीज आर फंगस लाइक बैक्टीरिया, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको लगेगा कि फंगस देख रहे हो, फंगस लाइक बैक्टीरिया, ओके, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वेट अ सेकेंड, वेट, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये सेप्टा नहीं है ऐसा मैं बोलना है, ये इसे देखते बराबर आपको लगेगा फंगस है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इसके पास डीएस सर्कुलर डीएनए है, और ये एक ही सेल है, इसके पास ऐसे ट्रांसवर्स वॉल नहीं, इसके पास ऐसे ट्रांसवर्स वॉल नहीं, समझ रहे हो, सो इट इज समथिंग लाइक फंगाई बट इट इज यूनिसेल्युलर, राइट, द सेल में बी ब्रांच्ड, समथिंग न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा डीएस सर्कुलर डीएनए, राइट, सो इसके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है, सो फंगस जैसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एक्टिनोमाइसिड, सो प्लीज राइट डाउन द एंटायर क्लासिफिकेशन, लिख लिया, ओके, चलो, सो कम टू ब्रीफ, what are these type of organisms, right, see, if we come to one more type of classification, बैक्टीरिया का अगर और एक क्लासिफिकेशन का हम क्राइटेरिया देखेंगे, so this can be classified, bacteria can be classified on the basis of shape, right, shape जैसे
सर्कल है, दे आर कोकाई, समथिंग लाइक रॉड, bacillus, then spiral, spirula, or they are comma shaped, vibrio. Okay, so bacteria can be classified on the basis of shapes. These are cocci, dot shaped, circular, rod shaped, spiral, right, or comma shaped. Okay, so classification can be on this basis. Classification can be on this: Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma, Actinomyces. राइट, ये शेप के अनुसार क्लासिफिकेशन है, ये उनके मॉर्फोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके साथ क्लासिफिकेशन है. अब देखो एक बात समझने वाली. See, the thing is, when you are classifying a giant organism, multicellular, तो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होंगे. मॉर्फोलॉजी होगी, एनाटॉमी होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, राइट, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे बहुत सारा डेटा आपके लिए अवेलेबल है. लेकिन ये एक सिंगल सेल है, इसके शेप में कितनी विविधता है? बस 4. इसको मॉर्फोलॉजी क्या है? इट्स यूनिसेल्युलर, इट इज लैकिंग मॉर्फोलॉजी. Such organisms which lack morphology are classified on the basis of their chemistry and other criteria. Okay, so यहाँ पे chemical analysis बड़ा काम का है, right? Okay, या फिर उसका जीनोम, उसका DNA, okay, वो एक काम की चीज है जिसके बलबूते पे आप एक ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन कर सकते हो. बराबर? सो गेट इट. Organisms which lack precise morphology are classified on the basis of chemistry, and that is considered as chemotaxonomy. That branch is called chemotaxonomy, in which we consider chemistry, metabolic reactions occurring within the cell, right? Okay, cell wall में कौन से केमिकल है, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब आर्कीबैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक है, तो क्या क्या रॉ मटेरियल बोल के यूज करता है, कौन से प्रकार का मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है. So when morphology is missing, the classification is based on chemicals. Got it? Right? So this is the additional part. Okay? ये हम रिवीजन में और डिटेल में देखेंगे. Okay? Right? So come to Archaebacteria. Archaeology, ये शब्द याद आ रहा है ना? So these are the most ancient. जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहानी सुनाई थी कि बिग बैंग हुआ, ओके, अर्थ पे वो लाइक बहुत ही क्रिटिकल सा, हॉरिबल सा, राइट, हार्शी क्लाइमेटिक कंडीशंस थे. कहीं वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, हॉट स्प्रिंग्स है, रेडिएशंस आ रहे हैं, बराबर है, ओके, रेडियो एक्टिविटी चल रही है, कॉस्मिक रे, गामा रे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. ऐसे हार्शी क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करने वाला, जिंदा रहने वाला कौन है? तो वो है आर्कीबैक्टीरिया. अब देखो, हॉट स्प्रिंग है, 300 डिग्री टेम्परेचर है वाटर का, तो ऑब्वियसली ये आर्कीबैक्टीरिया के पास ऐसी सेल वॉल है, वो सेल वॉल ऐसे केमिकल से बनी है जो उसको हीट में भी सस्टेन करने की क्षमता देता है. ओके, ठीक से सुनो. सी, वी ऑलवेज मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर 37. व्हाई हम 37 मेंटेन करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्यों? क्योंकि 37 टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम्स, बॉडी के अंदर के एंजाइम्स हाईली इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम करते हैं. फीवर आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो एंजाइम का काम करना, राइट, पुअर परफॉर्मेंस देना, एंजाइम का डीनेचुरेशन, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा. सो देखो, फीवर हमारा क्या होता है कि 4-5 डिग्री इधर उधर, तो हमको इतना फर्क पड़ता है. ये बैक्टीरिया 250 पे काम करता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, तो इसके पास कैसे एंजाइम्स होंगे, इसके सेल वॉल में कैसे केमिकल रहेंगे जो उतने टेम्परेचर भी स्टेबल परफॉर्मेंस देते हैं. Got it? Right? So cell wall as well as plasma membrane, both the structures of Archaebacteria are having ability to sustain the temperature, protecting the internal structure from the high temperature, and even the enzymes present in this bacteria are temperature tolerant. They grow in harshy climatic conditions, right? Deep oceans में, hot springs में, anaerobic conditions में, बराबर है. अब जो हमने कल लाइन ऑफ एवोल्यूशन सीखी थी, उसमें हमने बोला था अनेरोबिक हेटेरोट्रॉप्स पहले आए. ओके, तो वो टाइप के हमको यहाँ पे मिलेंगे.
वो डेवलप हुए एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स में, जब एटमॉस्फेयर में फ्री O2 ऐड हुआ, राइट। सो हार्शी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होने वाले आर्कीबैक्टीरिया, दीज आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी लैंड्स, अनएरोबिक कंडीशंस एक्सेट्रा। कम टू एनसीईआरटी पेज नंबर 18। बोर्ड में का सब लिख लिया है, दिस एक्टिनोमाइसिन्स ड्रॉ कर दिया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो, राइट। So, board completed. Now come to page number 18. Kingdom Monera. Yeah, see, bacteria are the sole members of Kingdom Monera. That's why we wrote here Monera bacteria. They are the most abundant microorganism underlying. जितने प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, उसमें से सबसे अबंडेंट कौन है? तो बैक्टीरिया। लाखों करोड़ों प्रकार के हैं, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी मिट्टी उठा लो, उसमें हजारों बैक्टीरिया और हजारों प्रकार के हैं। आपके स्किन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके एलिमेंट्री कैनल में, राइट, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डीप इनसाइड द ओशन, इन द मार्शी लैंड, राइट। ओके, वो जो कचरे का ढेर है जहाँ पे आप फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाते हो, उसके अंदर लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक कंडीशन में भी, अनएरोबिक कंडीशन में भी। सो इट आर अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन कर लिया। ऐसे पॉइंट्स आएंगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, उसके अंदर। ओके, सो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया है। ओके, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, एंडोसिम्बायोंट, पैरासाइट, पैथोजन, प्रीडेटर, राइट। ओके, प्रीडेटर ऑब्जेक्ट करते हो, लेकिन हाँ कुछ है जो मोटिलिटी करते हैं, राइट, और फूड को ढूंढते हैं वो मेथड से, राइट। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans, where very few other life forms can survive. ऐसे हार्शी कंडीशन, हार्श कंडीशन जहाँ पे बाकी के लाइफ फॉर्म जिंदा रह ही नहीं सकते, वहां पे ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से जिंदा रहते हैं। Many of them live in or on other organisms as parasites. देखिए, आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के बाहर कितने सारे पैरासाइट्स है जो बैक्टीरिया है। Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. Look at the shapes. मैंने यहाँ पे सिंपल से ड्रॉ किए थे, अब यहाँ पे देखो। Circular are cocci, right? Rod shaped like they are bacillus. उनका एक reproductive form होता है spore, right? That is bacillus जो rod shape है, adverse condition में वो spore बनाते हैं और जिंदा रहते हैं। Spirula are having flagella at the end. याद करो, चैप्टर सेल में हमने प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला सीखा था, which is not showing 9+2, having 3 parts, hook, basal body, hook and filament. तो वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इनके पास है, और कॉमा शेप्ड है विब्रियो। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्पाइरल कोकस, प्लूरल कोकाई, एक बैक्टीरिया कोकस, मेनी है तो प्लूरल कोकाई। The rod-shaped bacillus, plural bacillus, bacilli. The comma-shaped vibrium, that is plural vibrio, and the spiral, plural is spirilla. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex. दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? इतने एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहने की क्षमता जो रखते हैं, दे आर कैपेबल टू सर्वाइव इन हार्शी कंडीशंस। ओके, कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला कौन सा लाइन हमने किया? दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा क्या करेंगे? दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सॉरी, दूसरा क्या करेंगे? Bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Metabolic diversity मतलब
सेल के अंदर जो विविध केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जो विविध केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की विविधता, वो केमिकल रिएक्शंस की विविधता हमको बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा दिखेगी. Some of the bacteria are autotrophic. Some of the bacteria are autotrophic. That is, they synthesize their own food from inorganic substances. देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद है जो 10th में सीखा था? CO2 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज. CO2 वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल है. वो क्या बनाता है? फूड, ऑर्गेनिक केमिकल, दैट इज ग्लूकोज. राइट? सो सी, some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substances. Okay, inorganic substances लिख लो, CO2 water. इनसे क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ग्लूकोज, स्टार्च. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic. See, we wrote here chemoautotrophs, photoautotrophs. Right? The vast majority of bacteria are heterotrophs. Again, star point. हाँ, मोनेरा में हमको सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो सबसे अबंडेंट कौन है? हेटेरोट्रॉप्स. मोस्ट अबंडेंट आर हेटेरोट्रॉप्स. दैट इज, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. हेटेरोट्रॉप्स आर द वन, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे ईट रेडीमेड फूड और ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ओके, तो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको अंडरलाइन करो और लिखो सैप्रोफाइट. सो बैक्टीरिया में भी हेटेरोट्रॉप और बैक्टीरिया में भी सैप्रोफाइटिक. राइट? आर्कीबैक्टीरिया. These bacteria are special since they live in some of the most harshy habitats. ये बड़े स्पेशल है. ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं. Such as extreme salty areas, halophils. बेटा ये शब्द ध्यान में रखने पड़ेंगे. Salty areas मतलब हॉट स्प्रिंग्स है या ओशन का वाटर है, बराबर सॉल्ट ज्यादा है तो वहां पे ग्रो होंगे. हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफिल्स, hot springs, thermoacidophil, and marshy areas, methanogens. Get the word methanogen. What is the word? Methanogen. So see, isn't it like methane? बराबर है. So ये ऐसे है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में मीथेन बनाते हैं. राइट? So जो मीथेन बायोगैस में बनता है. देखिए बायोगैस, गोबर गैस था ना स्कूल डेज में. Right, renewable source of energy. Okay, it's used as fuel. So these are methanogens which grow in marshy. Marshy मतलब दलदल का एरिया, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, वहाँ पे ये हेट्रोट्रॉप्स है, अनेरोब्स है, उसको डिग्रेड करेंगे और मीथेन गैस बनाएंगे. राइट? देन आपने डिस्कवरी चैनल पे वगैरह देखा होगा कि आइस के नीचे ये मिथेनोजेंस होते हैं. राइट? और वो जो बबल्स निकलते हैं वो मीथेन के, मतलब कभी कभी ऐसे आइस फोड़ने के बाद अगर आप उसको जला दो तो इट विल बर्न लाइक फ्लेम कमिंग आउट फ्रॉम आइस. ठीक है, सो दोज आर व्हाट आर मिथेनोजेंस. आपने देखा होगा डिस्कवरी पे. ओके, सी, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है. Okay, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. उनकी सेल वॉल, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पेक्यूलियर केमिकल से बना है, उसकी वजह से ऐसे हार्श कंडीशन में ये बैक्टीरिया ग्रो होता है, जिंदा रहता है. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals. Ruminant animal, cow, buffalo are ruminant. Right? मराठी में उसको बोलते हैं चरवण करने वाला, हिंदी में भी बोलते हैं, रवंथ करते हैं वो. मतलब जब ग्रास खाने को दो फटाफट फटाफट खा लेंगे, रूमन में डाल के रख देंगे. जब आराम से बैठे हैं तो रूमन जैसा फूड निकालते हैं, राइट, माउथ में लाते हैं, फिर से उसको क्रश करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, च्युइंगम खाते जैसा आपने देखा होगा. राइट? सो दे गो ऑन ग्राइंडिंग इट प्रॉपरली बिकॉज दे ईट ग्रास. मतलब मैक्सिमम उसमें सेल्यूलोज होता है. ओके,
ग्रास इज अ प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज इज नॉट डिग्रेडेबल। तो ये जो खा रहे हैं ये रॉ मटेरियल अनकुक्ड है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पावरफुल लगेंगे, तो सलाइवा में उसको अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सी में घुमो के जैसे बनाते हो, ग्राइंड करके फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेल्यूलोज डाइजेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कैटल वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आर डाइजेस्टिव सिस्टम डोंट सिंथेसाइज एंजाइम व्हिच कैन डिग्रेड सेल्यूलोज, बट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द रूमिनेंट्स गट, उनके एलिमेंट्री कैनल में जो गट का पार्ट है, ओके, वहां पे ये बैक्टीरियाज है जो ऐसा एंजाइम बनाते हैं कि ये सेल्यूलोज और ये केमिकल्स को, वो जो उन्होंने खाया है, रॉ फूड खाया है, ग्रास खाया है, प्लांट खाया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करेंगे। सो आई रिपीट, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर as well as plasma membrane structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. Okay, देखिए मैंने अभी बोला गोबर गैस, काउडंग बफेलो डंग ही वो गोबर गैस प्लांट में डालते हैं जिसमें ये मिथेनोजेंस ऑलरेडी है, वो डिग्रेड करते हैं, वहां से मीथेन बनता है। वो मीथेन को हम, जो गैस है तो ऑब्वियसली वो काउडंग बफेलो डंग जो नीचे बैठा है जिसका फर्मेंटेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वहां से उभर के गैस ऊपर आएगा। वो गैस एक डोम शेप सिलेंडर में कलेक्ट होता है और वो हम पाइपलाइन से बर्निंग फ्यूल के लिए यूज करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। देखो हमने लिखा है, राइट, आर्कीबैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल लिख लो आगे। आर्कीबैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख लो, मेथानोजेंस, हैलोफिल्स। आर्कीबैक्टीरिया के आगे एग्जाम्पल लिखो, मेथानोजेंस, हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, राइट, मेनली anaerobic heterotrophs. Some are chemoautotrophs, right? So this is what about archaebacteria. इसके बाद आएगा यूबैक्टीरिया।